Assalamu alaikum, students. Um, Please confirm that you can hear me clearly and you can look at the slides. Hello, जी Ehtisham? सर। जी, यस सर। आवाज़ आ रही है और what's right? Okay, सब सही नज़र आ रहा है। thank you. Okay, the today we have our 30th lecture of deep learning. To connect us in the context, we started in our last class with multi-stage neural networks and implemented them with Python. How can we implement multi-stage neural networks with Python? Uh, First, we looked at our basic problem which we had learned before this, and that was the exclusive OR function. We found it was not linearly separable by perceptron-like model, which had no hidden layer in between. It didn't work for that. And we needed something more powerful. And we said more powerful thing in neural networks thing is multi-stage neural networks which have additional hidden layers in addition to input and output layer. So we said they can solve even those problems which are not linearly separable, and lot of problems belong to that category. So first, we'll, as example one, we looked at multi-stage neural network with Python and solved the problem of exclusive OR and saw that it could work. It worked well for that. We looked at a 2-to-1 architecture uh, in which second layer of 2 was the hidden layer. And 2-to-1, if we absorb the bias, it became 3-3-1, and we solved that problem. Next, we had looked at in our last class, which is also in your project, and that was solving the problem of handwritten digit recognizer. And the data set we took for that was from MNIST data set. MNIST data set is very large, around 70,000 or so. Um, and for this case, we used a smaller subset of MNIST data set, which comprises of about 1800, less than 1800 uh, samples. So we did see this example in this context in our last lecture, and that is your project also. Here is that, if you remember and you recall. Do you have any questions on this part? Okay, let me highlight in the context the major things we learned. We had gone through the detail. Now let's look at the major aspects which you need to connect throughout our flow. Number one, we are using Python in this case for building. Of course, when we say multi-stage neural networks, we are talking of using of backpropagation algorithm all the time. Here we have, because we had started, so we were mentioning backpropagation, but then later on you may not see it mentioned and understood that in such deep networks, the backpropagation is being used as a part.
Number two, this backpropagation based thing, if you do with Python, you are doing with things from scratch, from the basics by using this language to see the details of its working. And I told you that later on we will look at same things being done by Keras, which is a higher level of abstraction and will be, as a programmer, much more efficient to write that Keras library. But this is the time to see inside the hood and look at the details of how things work. As I mentioned, this is a handwritten digit recognizer thing, which means you have, when you write digits, different people, different times, they have very different shapes. Same digit, like one will have many shapes, two will have many shapes, and it is as an image to recognize those shapes by using machine learning or deep learning is a challenge, a reasonably challenging task to do. So it may obvious to us, but just by at looking at um, pixels and recognizing various ways the 4 is written or 8 is written or 7 is written is an interesting problem to look at. And as I said, we will use MNIST dataset, which is, we'll use the one which is built into Scientific Learn Library as a part. It has a helper function to readily provide this MNIST dataset. We are using subset, as I mentioned. The actual set is about 70,000 such examples of digits. The subset, smaller subset, which we use here in this is of 1,797 examples, around 1,800 examples of digits. To contain the problem, in this case, this smaller version, we will each digit is represented by 28 by 28 pixel way. Height and width of the pixels, image pixels is 28 by 28 actually. In this case, for this subset case, we cut it down to 8 by 8 pixel arrangement. And when, if it is 8 by 8, we have 64 dimension vector. When we flatten it, it will be a 64 dimension vector. Our feature vector as input to multi-stage interconnection network will be a 64 dimension vector. Okay. Oh, and in this case, our objective was that we should be able to classify, let's say, after we train, should be able to give any handwritten uh, digit, maybe even beyond this. Once you trained it, it doesn't have to be that your when you use this system that it should be one of this. No, one of these digits written by you in a different way, it should be able to intelligently recognize that. And any one of those digits from 0 to 9, handwritten digits recognition system. In this, we learned, as you will see, there are some very standard things which we do. Um, for this case, Python-based neural network implementation. And we saw that here are the libraries we use. You should mark the libraries, like first one from the pyimage.nn. We import the neural network, right? So if you have this
you use this library to import the neural network class or module from the library. You don't write the whole code of the neural network as some of you did in your previous that uh, in previous lab we had used the library, but then you had written all the code as a part of it. You don't. Uh, Either you have this, either you use this library and call this class and use it, its methods, and build the thing. Or maybe if you are writing your own code for this class, then once you write that class, make it into a library, and wherever you need that, you say, okay, my neural network version library, and import that and use it. But you don't keep writing these codes, the things, the way we built our systems in class-based approach, object-oriented. Why we focus on that is that it is the code reuse. When you have a class, it means you have the required data and methods in one place, and you can instantiate it into an object and create any number of objects and use those properties, attributes, and methods again and again, and not rewriting that code. So please take care. This was one big observation from our last lab. And now we will have a continuous session of these labs using neural network class as it is here, and we'll continue with that. So please do that. Told you. Then the other things are imported from sklearn library, sklearn library modules like sklearn pre-processing, sklearn model selection, sklearn matrix, and sklearn directly the data sets. And in case processing, we have imported label binarizer, which I explained to you last time, that any label from 0 to 9, instead of using the integers uh, 0 to 9, you use a vector, binary vector. The position of 1 in that binary vector will tell which integer digit it is. And because it is much easier to process things that way. So we always, you'll find this label binarizer appearing again and again. These are the standard things that you split the data into train and test part. And this is the classification report, which I was asking you last time, that to summarize your results of classification, you use this classification report. And here is the data set which you get from sklearn. It's a helper function which will now load this subset, or smaller subset of MNIST data set from that. You will use this for doing that. Okay. All right. And then in this case, we used all first, um, got this we loaded this MNIST samples from this data set which we had. Now we have readily available that. So we have loaded here, loaded those from the data set, load digits thing, gave it a type, float, scaled it, and printed it showing both from the data, its shape 0 value over here, samples, number of samples are shape 0 side, and shape 1, the length of vectors of our input data length of vector, size is the shape 1,
and the length of data size is this shape 0. So we printed that. You will see, you saw that in the output. Here we then carried out a 75%, 25% split data. You can see we use this readily function. Here we showed the split. Here are the training and test variables in which the split will travel. And we have the data and digits target thing given, which we are splitting and putting it into these variables. Here is that binarizer, which I showed you this here in diagram. An integer number, any integer number represented as a binary pattern of this 10 binary bits, uh, and the location of that binary bit will mean what digit is it. It is called one hot encoding way of representing things. At many places we do that. So here we do by using this function uh, fit transform and fit transform for both cases, because it is required for the output side. So you will see it is only train Y and test Y on which we apply this and change them to same test Y and train Y now become in this represented in this way. Okay, it is only because it is the output actual, which is as our output will be 0 or 1 or 2 or 3, or only they need to be changed, not the x. We are not changing the x doing that. Okay, all right. And then we have over here, we are doing the training now. Now you will see training the network that we called, you see here, you use the neural network class which you have imported. You have not written the code for building the neural network, which is a lengthy code. So for neural network class, we have used neural network class, and we have given it the parameters of architecture of our neural network. And they were 4 parameters in this case. 10 is for the output. Train x dot shape 1. This is the size of the vector which is fed in, our feature vector which is fed in, which in this case are the pixels, flattened pixels. And we had 8 by 8 thing. So we gave, like here we are feeding 64, 32, 16, 10. This is our architecture. So we provide the architecture and we call the neural network class which we have imported and make an instance of neural network. NN is our name. So that is what all you need once you have imported the class, whether somebody else's library or maybe your own library you made a neural network. If you, let's say, could not find the other's library, then you write your neural network code once and make it a library and use it as a class. In this code, you will find there is no neural network related lot of methods which you are using. So please benefit from this approach of object-oriented programming and classes and code reuse. Otherwise, things get very, very complex and clumsy to handle problems. Okay, because there are a lot of methods which are used from this neural network. If you had a problem of writing one of the methods of this class neural network, that should get sorted out at that time when you were making this class, not when you are solving this problem of digit recognizer and then you get entangled into the problems of neural network methods. That's a wrong time to get entangled with that, right?
in our previous lectures, we did the details of this making of neural network. We understand them. We did that, not that we said, okay, it is a magical word, use it. We have gone through that detail, but now when you start applying, you must use those classes. Okay, then we format, we print this, our architecture thing by saying this. Then we apply the training, and for training now we have already split it. So we are using training X and training Y and telling how many epochs we want to use, how many times iterate the full data, that is it, and use this dot fit to do that. And it will train the network. Then we said, okay, now we have trained the network, let's evaluate it. Uh, so here we evaluate the network for train for 1,000. If once our network is trained, we can evaluate it. Okay. All right. So it is simply that if the data has been trained, now you want to test it. That my trained system, how is it working? So when we want to test it, you use in that class of neural network again the predict. Predict is a method which was in the class of neural network built at some other place. You had imported that class and you are freely using dot predict over here. Here is. This was your instance of neural network and you call the method from the neural network as predict. You have not written its code here. You don't need to, you should not, right? And then you because you're testing, you use test part. 25% of the X data was test X. So you use that text X, apply the predict thing and get this output in predictions. And from the output predictions, because in the predictions, what actually it gives, it tells what is for a unknown or presented sample, it tells what digit is it, or okay, it it tells what is the probability of this digit to be 0 or 1 or 2 or 3 or 4. That's the answer. This prediction thing gives an answer that you have given me this digit, presented me this test digit. I think it has a probability of this to be 0, probability of this to be 1, probability of this to be. So it just gives probability of of a new digit, a list of probabilities from 0 to 9, 10. And you want to select now the index of uh, which one is the highest, which digit probability is the highest, and that will be the answer. Okay, so you get the argument of highest digit in axis 1. You remember our vectors are in axis 1 of the this data, so you got that returned here. Now your predictions have been updated to that highest values case. So now you have got for a test data a predicted values. So your system predicts this, and the actual values given to you in test Y what are these in test Y. Also you apply the argument max in axis 1. So in axis 1, um, it this is the actual values in the test data of answer, actual values of answers in test data. This is the predicted values on test data. So now in the test data, you are looking at these two values
and then generating the classification report. Right? So this prediction thing, it has, it will be using 450 our total data's 25% is for the test data. So our total data's 25% is this 450. So that is its answers total length. You have 450 test data outputs, and here are the its answers. So its dimension or shape is 450, 10. Okay. All right. So here is our the results for this part. And now if you see, हमारे कोड में था जो शुरू में हम देख रहे थे, ये अब हमने जब रन किया इसको तो हम वो देख रहे थे लोडिंग MNIST sample data set. So that message is printed here, which you had given in your code. And it said at one time the samples printed samples, how many samples are there, and printed the from the data set the number, and it printed the dimension, which is 64 8 by 8. Then we printed it is training the network, so that message has been printed. Then we printed the architecture at one stage. It is printed that neural networks and architecture 64 32 16 10. So it printed that. Okay. And when we printed the results, we said, okay, we printed EPOs after every 100 EPO, the results, loss when we were training. So loss, what is the loss for after every 100 EPO status of loss, we find the status of loss, value of loss going down as the training data is passing through more and more EPOs. So that is this picture with input giving more training, getting better in terms of loss thing, and shown on the diagram that as we carry out more and more EPOs for training, our loss value keeps decreasing, and in fact it sharply decreases initially and then stays at low loss figures. Here is the 75% of the data, which is 1000. For the training, you use 1000 samples. As we saw just now, for the test data, it was 450 data samples. And this is a graph for that. This is the table output for that. When we ran in the evaluating part, test data, we did the testing. At that time, beginning of that, we printed, before printing result, we said we are evaluating network. And then we printed the results on our test data. So here are the result of our test data, that it showed precision, accuracy or precision. There are other performance parameters. These are performance parameters. Recall, F1 score, support. We will, with time, look at those performance parameters also. At the moment, we are focusing on some very basic, obvious parameter, which you even wrote, some of you, the code last time, is this, that what percentage of times when you were testing the system or evaluating the system, what percentage of time the system found the right answer. Actual answer was given, it predicted the answer, it compared predicted and actual answer, and then it said whether it counted it for a correct answer, and then carried out the percentage of success out of the total data. So it saw when you tested that zero was detection accuracy or precision was 100% time. It found zero
correctly in your test data 100% of time. It found one correctly 98% of the time, two 98%, 98, 95, 94, 100%. So for each digit, this was the accuracy of evaluation or detection. If we average this accuracy over the all, we add all of them and divide by 10, we get 0.98. It is a decent uh, accuracy. Um, the worst case is this 94, 95, and average is this. Best case is 100%. While it is pretty, it looks pretty good, but we have grown capabilities with time. Old times, in the older time when deep learning was not available, they were, we saw in the previous cases the average 57 or 51, 50, something like that. Now it is an improvement, but then people kept working and they went to the convolutional neural networks and enhanced these percentages even higher. Okay. So we have seen, and one example of using multi-stage neural network and implemented them with Python and took the example of handwritten digit recognition on a subset of MNIST dataset. This is what you should know the complete exact context of the things. Knowing the context is very important comprehensively, because while you are designing things, while you are answering some question, while you are attacking a project for solving it, you have to look for the right questions, the right context to before you start even implementing. Like this, all is very important. What is the data set? What is the data set? What is the size of the data set? What is the size of each vector of data set? What performance metrics you will have? What way you will show the training results? How can you plot the graph for that? So all that, how many epochs you are going to run? What is the impact of epoch? What is the precision? So all this should be known, and you should look for them and you should understand them. Uh, it's not that you just, while we are giving you lot of case studies, examples, discussion, codes, but they are all there to explain you the concepts and context, so that when you have to handle the changes, you can handle them. Okay. अच्छा, अब हमें जो हमारे अब हमने जो कहा था कि हमारा इसके बाद कि हम दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क्स की, एंड वी इम्प्लीमेंटेड बोथ ऑफ देम विद पाइथन and saw the complete working with results. And as I mentioned earlier, there are more powerful libraries built for multi-stage neural networks, which have better level of abstraction and makes the programmer's job easier, provided programmer has gone through all this which we did. He understands choices for architecture, for optimization, for regularization, for training, for testing. If he understands those and he can make the right choices, then he can tremendously benefit for moving to Keras. Right? So we will see first, seeing the same problem, handwritten digit recognizer for MNIST by using multi-stage neural network and with the help of solving the problem with the help of Keras. That's our first example with Keras. So that you just connect the two solutions, one with Python from the scratch and one with Keras library.
because now we have understood things and we have much better platform to express our things, so we decide that we will use the full set of MNIST data set. All right, so we are looking at MNIST full data, full set of characters, handwritten digits, and we want to recognize, yeah, using Keras. All right. In this, here, just we mentioned that we will look at two examples. In fact, first is this MNIST, handwritten digit set recognition. And then we'll see another example, C for 10, another data set, again available with Keras for us to look at that. We will look at these two examples by Keras, and then we will see uh, it will give us a reference thing for moving ahead to convolutional neural networks, how they can dramatically art improve our performance. So they will also work as a reference thing when we move to convolution neural network in terms of a performance improvement reference. Okay, here I this mention the full MNIST data set is of 70,000 data points, each digit of 7,000 example, and there are 10 digits, so its size is 70,000. Our previous Python thing, we used a smaller data set, which is for your initial lab, first lab. It used 1,000, some 700, it's around 1,800 points. So you can see it's tremendously big. And in fact, as I keep telling you earlier also, we have to see these things in a program automated way of working, handling of things from disk to RAM and shuffling or anything automated way. You cannot do as we were doing initially, some of you, that manually you took some four dogs and four cats and then manually you shuffle them around and then manually you no, the data sets tend to be so large that either you will use readily available huge data sets available in the in the internet, and their processing either at file level or at RAM level or moving from file to RAM and moving from RAM to file, all has to be done through automated programmed way. Maybe in the learning phase you could do that, but no practical system can be done that way that आप data set को बहुत small size में खुद by hand उनको shuffle और ये करके इस्तेमाल करें. ओके, इस केस में मैंने जैसे बताया था कि हमारी पिछली एग्जांपल में एक फ़र्क ये है कि हमने फुल डाटा सेट लिया है जो 70,000 का है, और दूसरा ये था कि पिछली अभी एग्जांपल जो हम कर रहे थे हमने उसमें बताया कि हम एट प्री प्रोसेस स्टेज उसको हमने कट डाउन, इनफैक्ट उसने ही कट डाउन, उस केस में डाटा 8 इस 28 बाय 28 इमेजेस को एज 8 बाय 8 शक्ल में प्रोवाइड किया गया था. तो हमने वहाँ डाटा के वेक्टर का साइज 8 बाई 8 64 इस्तेमाल किया और उस पर काम किया. यहाँ पूरा डाटा जो था इस हर कैरेक्टर का, हर लेटर का 28 बाई 28 का, वो पूरा इस्तेमाल हुआ है. तो इसको जब फ्लैटन करेंगे 28 बाई 28 से, इट विल बी 7
184 dimension vector. So can you see the difference in the hugeness difference even between these two examples? And we will, our aim is that, okay, we get Keras, we use the Keras, more powerful library or more easier to use, better level of abstraction, and get some percentage of accuracy greater than 90% in a much more easier way. Okay. तो पहला हमारा as usual we start up with importing of required from libraries the required classes or modules in the beginning, which we do here also. Um, from the sklearn dot model selection, we import train test split. We you know it for what? Sklearn matrix, performance matrix. We print in the end the results performance. We use this classification report class there. So this classification which gives you the performance things like accuracy and all that on your data, which I was also asking you last time. Why don't you use that? So from sklearn.metrics we have that. Here is the major big thing, Keras, which were doing there. From Keras libraries, these are the different parts of that library. So from Keras.models, we import class sequential. We'll learn about that, what is sequential. From class.layers.core, we import dense. This has to do with the placement of sequential placement of layers, dense degree level of connectivity. So हमने ये connectivity से लिया, ये हमने layers के architecture के लिए लिया, ये सब केरास से हम ले रहे हैं. केरास के ही optimizer part से library के हमने import किया SGD in this capital letter, stochastic gradient descent. देन हमने sklearn से जो पीछे भी किया था ये डेटा सेट्स, हमने डेटा सेट जो इस्तेमाल करना है अब ये वाला बड़ा डेटा सेट, ये भी sklearn में बड़ा भी मौजूद था, स्मॉलर वन भी था. तो पहले हमने स्मॉलर यूज किया था, अब हम उसमें से ये इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्लीट. इस केस में भी और बहुत सारे केसेस में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स को हमने शुरू में ही जब पाइथन हम सीख रहे थे तो हमने ये सीखा था मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी कि मैट्रिक्स के रिजल्ट्स को प्लॉट करने की जो लाइब्रेरी है. और ओके, तो ये लाइब्रेरी का पाइप्लॉट पोर्शन इस लाइब्रेरी का हमने इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको स्मॉल नेम निक नेम PLT दे रहे हैं प्लॉट. इसी तरह numpy को NP, और ये हमारा कमांड्स के पार्स करने वाला पार्ट जो हम आर्क पार्स से करते हैं, ये हमारी सेट ऑफ लाइब्रेरी. ईच वन ऑफ देम हैज ए पर्पस, मीनिंग एंड सिलेक्शन डन बाय यू. नो यू सी कि फ्रॉम केरास आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, फ्रॉम प्रीवियस जो sklearn से कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, कमांड के लिए क्या चाहिए, रिजल्ट्स को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटेशंस के लिए क्या चाहिए, ये सारे मामला, डाटा सेट कैसे लेना है, ये हमारे जो हमने न्यूरल नेटवर्क्स के मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क्स के मल्टीपल चीज़ें जो ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके सीखी थी हमने, कनेक्टिविटीज़ को देखा था, आर्किटेक्चर को देखा था, परफॉर्मेंस को देखा था, अब ये उनके बारे में हम यहाँ करेंगे काम. इसी तरह यहाँ पर सिलेक्शंस हमारे हर जगह इन्वॉल्व होंगे एक्सेलेंट. ओके, ऑलराइट. अब हम पहला एज यूजुअल
हाँ वालेकुम सलाम। मैं अभी बिजी, जी मैं अभी बिजी हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो फिर बाद में। ओके ओके ओके। सर ये स्लाइड बैक करें प्लीज। जी। मैंने लाइब्रेरी नोट करनी है सर। कौन सी? ये लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी? यस सर। अच्छा, असल में we will upload these slides. We always, every day, we upload the slides as well as our YouTube सर activity. सर असल में मैं डाउनलोड कर रहा था तो इस वजह से, Okay, यानी कि उसमें लाइब्रेरीज। okay, ठीक हो गया। सर ये ज़रा ये केरास के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, अगर लाइब्रेरी के इसका क्या काम होता है सर। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया? नहीं सर, पहले भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था, पहले हमने दो एग्जाम्पल्स की कि हमने बिल्ड किया मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क। मल्टी स्टेज में मकसद ये था कि हिडन लेयर्स भी बीच में ऐड की। तो अब हम टू लेयर्स वाला मॉडल से थ्री लेयर्स फोर लेयर्स वाले उस पर आगे, इसको हम मल्टी स्टेज कह रहे हैं। इनको पहले हमने इम्प्लीमेंट किया प्योर पाइथन लेवल पर, और लाइब्रेरीज यूज की पाइथन लेवल पर। केरास इज वन लेवल up in terms of level of abstraction, a library for implementing multi-stage neural networks or deep neural networks, which have the hidden layers also. So it's a library. It's a library which अच्छा nicely helps you to implement multi-stage neural networks in a easier way. मतलब इसने बहुत सारे आपको काम के जो डिटेल जो हमने पाइथन में हमें करनी पड़ी थी, इसने उनको बहुत ही नीट नाइस तरीके से आपको मुहैया कर दिया. So it is more dedicated of building such multi-stage neural networks, right? And it's a more powerful library. तो सही। ये, और उसके देखें आप, इसके अभी हम देखेंगे कितनी जल्दी ये सीक्वेंशियल और डेंस और एसजीडी और इसी तरह और भी बहुत सारे चॉइसेस डायरेक्टली आप मल्टीस्टेज न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स दे के, और वेरी क्विकली यू बिल्ड द थिंग. हमने उसके पहले वो डिटेल्स पाइथन लेवल पे इसलिए की कि जब आप यहाँ चॉइसेस करो तो आपको वो मामलात, अंडर द हुड वाले मामलात पता हो कि आप क्या कर रहे हो. सही ठीक, बट इट्स अ वेरी सही। पावरफुल थिंग, यू विल सी. इसीलिए हमने ये चूज किया कि एक एग्जाम्पल जो अभी हमने लेक्चर के बिगनिंग में हैंड रिटन डिजिट रिकग्नाइजर की पाइथन से की थी, उसी की एग्जाम्पल अब हम मच बिगर डेटा से मच लॉन्गर वेक्टर साइज के साथ अब हम केरास से कर रहे हैं. एंड यू विल सी कि हाउ नीट इट बिकम्स विद केरास. ओके. ठीक सर। अच्छा, ओके। केरास की एक हमारे इंटरेस्ट की रीज़न ये है कि केरास पहले मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता था एट द बेस ऑफ इट, जिसमें से एक टेंसर फ्लो की बैकएंड पर मौजूद था सपोर्ट के लिए, और दूसरे भी थे. ठीक, अब विथ टाइम केरास और टेंसर फ्लो की मर्जर बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है. टेंसर फ्लो 2 जब गूगल वालों ने हुआ तो केरास और टेंसर फ्लो हैव गॉटन इंटीग्रेटेड, और अब इट इज टेंसर फ्लो डॉट केरास ऑप्शन जो अब हम यूज कर सकते हैं. तो इसलिए भी केरास का लर्न करना का मतलब है वी आर टेकिंग ए बिग जंप टुवर्ड्स मूविंग टू टेंसर फ्लो 2 यूजेज. Okay, सही। so that is यस सर। very interesting. These are the latest most powerful way of working on multi-stage neural networks or deep neural networks or deep learning. Okay. ओके. सही अच्छा, सर। अब हम कह रहे सर हैं. मैंने इस वजह से क्वेश्चन पूछा था कि वो उस पर लिखा हुआ था जी जी. कि ये डीप लर्निंग ऑफ ह्यूमन, जब मैंने इधर यहाँ पे सर्च किया तो उसके मैं फिर इस वजह से सर थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने सवाल पूछा कि ये ओके क्या होता है सर। ओके ओके. ऑलराइट. It was a very relevant question. If you asked at the right time, it will benefit a lot of other people also. Okay. Okay.
थैंक यू I सर। expect all of you to ask questions and clarify things during the lecture, after the lecture, beginning of the lecture of the next class. It is helpful. It's very helpful. ओके, तो अब हम कह रहे हैं ये अब हमारा वो ये सारा सीक्वेंस ऑफ थिंग्स उसी लाइंस पर है। ओके, कि पहले हम वही कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को पार्सिंग करते हैं, उसके लिए हमें ये मौजूद है इसमें। ये वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि आर्गुमेंट पार्सर का मेथड आपने यहाँ इसको इसका इंस्टेंस बनाया और इस इंस्टेंस से फिर ये मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें आर्गुमेंट्स जो जो आपने यूज़ करने होते हैं वो आप यहाँ लिस्ट करके बारी बारी बता देते हैं। इस केस में एक आर्गुमेंट आउटपुट वाला हम चाहेंगे पार्स करना डैश ओ से आउटपुट उसका वर्डिंग में एक्सप्रेशन है। हेल्प ये बता रहा है कि ये क्या है, पाथ टू द आउटपुट लॉस एंड एक्यूरेसी प्लॉट। तो इसका हमें इस्तेमाल करना है कमांड लेवल पर, तो वो उसकी हमने यहाँ पे बता दिया। और ये एक रिक्वायर्ड है आपको उस इसको यूज़ करने के लिए जो आप देंगे। बाकी ये आर्गुमेंट्स को पार्स करने के वेरिएबल्स की हम यहाँ इनिशलाइजेशन या कह देते हैं कि हमने ये काम करना है। तो ये वेरी सिमिलर एक्सेप्ट के यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है, कमांड में हमने डैश ओ एज आउटपुट विद दिस इंफॉर्मेशन को करना है। ओके, अब हमारा लोड द फुल एमनेस डाटा सेट, जो मैंने कहा था कि इस केस में हमने कंप्लीट डाटा सेट को लोड करना है। 70,000 vectors of 784, which is 28 into 28 size images of digits. That is what data set है। Okay, as it is little big, तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे डाटा सेट को तो फिर ये इट विल टेक लिटिल टाइम, सो बी पेशेंट, नॉट too much of time, but at least not just you just click the button and get it. So it's a 55 megabytes MNIST data sets will be downloaded. ओके, यहाँ हमने वो प्रिंट करते जाते हैं चीज़ें, जैसे कि हर स्टेज हमें जब आउटपुट निकालें तो ये तमाम स्टेजेस हमें पता हों कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है हमारा कोड। तो ये हमारा था कि एमनेस डाटा सेट को लोड करने का प्रिंट आपने कर दिया। यहाँ पर ये है कि आपने डाटा सेट्स जो क्लास अभी आपने इंपोर्ट की है एसके लर्न से, इस एमनेस डाटा सेट के एंगल से, उसको लेकर उसका मेथड fetch ml data, I don't know ml stand, maybe mnest large data or something like that, but it is ml data, fetch underscore ml data। तो ये mnest ओरिजिनल जो टोटल डाटा था नेम, ये उसके कमेंट्स में आपने लिखा। तो ये डाटा सेट आ गया आपका, ये डाउनलोड का हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इस डाटा को जिस तरह हमने पहले भी किया है, यहाँ भी वही कर रहे हैं कि हम इसको 0 से 1 की जो इंटेंसिटीज हमारे पिक्सल्स की, उन वो 0 से 255 की रेंज में है, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट रेंज ऑफ 0 to 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ताकि फिर हम और फिर उसको स्प्लिट भी कर लेंगे, ट्रेन टेस्ट के स्प्लिट से पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेटा सेट ये जो अब हमने बनाया है, कर लिया है आपने, इसका इंस्टेंस ले लिया है, बना लिया है डेटा सेट, उस पर डॉट डेटा के टाइप फ्लोट आपने किया और उसको डिवाइड किया वैल्यू को 255 से। ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ की 255.0। और अब यही डाटा आपका स्केल्ड हो गया है बिटवीन 0 to 1। 0 मिनिमम डाटा था, मैक्सिमम 255 था, 255 को 255 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 1 होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट रेंज
फ्रॉम 0 to 1 में हमने इस इंस्ट्रक्शन से डाटा को कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा डाटा इस रेंज में है, सेम। ओके, इसको फिर हमने जिस तरह पहले था कि डाटा को स्प्लिट किया, उसमें ये एक तो ये डाटा जो ओरिजिनल डाटा है हमारा, और एक डाटा सेट में जो आंसर है टारगेट, हमारा एक डाटा है जो इनपुट है और टारगेट जो है वो आउटपुट है। और हमने परसेंटेज ऑफ स्प्लिट हम 25% बताइए टेस्ट डाटा के लिए, ओरिजिनल डाटा के 75, और यहाँ पर ये 4 वेरिएबल्स ट्रेन के एक्स वाई और टेस्ट के एक्स वाई जो हम पहले भी कर चुके हैं और उसी तरह यहाँ पर हमने कर लिया है। ओके, सो हमने डाटा, सबसे पहले डाटा लिया, उसको स्केल करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट किया, उसको स्प्लिट करके 75-25% स्प्लिट कर दिया। यहाँ जो हम पहले सीख चुके हैं वो बड़ी आपको एक कम्प्रिहेंसिवली वो चीज़ दिखा रहे हैं हम। वो जो हम यूज़ करते हैं लेबल बाइनराइजर, हमने ये भी इंपोर्ट किया था लाइब्रेरी से इस क्लास को। तो लेबल बाइनराइजर को यूज़ करके हमने इसका इंस्टेंस बनाया, इस लेबल बाइनराइजर के, और उस इंस्टेंस को यूज़ करके हमने ट्रेनिंग का जो वाई वैल्यू थी और टेस्ट की जो वाई वैल्यूज थी उनको ये मेथड कॉल करके कन्वर्ट कर दिया ट्रेन वाई और टेस्ट वाई को। यानी ट्रेन वाई और टेस्ट वाई हमारे इस डाटा में हर गिवन उसके आगे दिया हुआ था 0 और 1 और 2 और 3 और 4। तो हमने वहाँ जो वैल्यूज दी हुई थी उनको ये ट्रांसफॉर्मिंग की, विच इज दिस, कि जहाँ 0 था उसकी जगह ये वेक्टर डल गया जिसमें 0th पोजीशन पे 1 है। जहाँ 1 था वहाँ एक वेक्टर बाइनरी डल गया जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर 1 है और 2 सेकंड पोजीशन पे 3। तो ये वाले डिजिट्स जो हमारे आंसर्स में लिखे हुए थे डाटा के, वो इस शक्ल में कन्वर्ट होकर वहीं पर लिखे गए। तो ट्रेन वाई और टेस्ट वाई ये बन गए आफ्टर दिस प्रोसेसिंग, ये काम हो गया। अब हमारा ये वो है जो अब हम बात कर रहे थे कि एस के हमारी जो प्रेजेंट जो हमारी लाइब्रेरी है, जिसको हमने अभी, जिसका आप अभी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, यहाँ पर हमने ये वाली लाइब्रेरी केरास का, केरास से हमने ये सिक्वेंशियल और डेंस और एसजीडी ये हमने केरास से लिए हैं। अब आप देखें कि केरास ये चीज़ें रेडिली हमें प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क के लिए रेडिली मसले को हल कर देगी। पहला, हमारी आर्किटेक्चर इस केस में इनपुट इमेज 784 फ्लैट एंड वेक्टर का है और हम डिसाइड कर रहे हैं, ये हमारा डिज़ाइनर के चॉइसेस और डिसीजंस हैं, या बाद में उनको रिफाइन करेगा वो या कुछ, लेकिन हमारा डिसीजन ये है कि इनपुट इमेज 784 पिक्सल 28x28 जो फीड होंगे एक वेक्टर का साइज, और हमने डिसाइड किया कि इसको हम 256 हिडन लेयर, उसके बाद नेक्स्ट लेयर 128 अनदर हिडन लेयर, और ये फाइनल आउटपुट लेयर जो क्लासिफिकेशन लेयर होती है हमारी, इसमें क्योंकि 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, तो ये 10 हमारी आर्किटेक्चर का रिक्वायर्ड साइज 784, 256, 128, 10 हमें चाहिए। इसको हम यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके, पहले हमें ये मॉडल, हमने वहाँ सिक्वेंशियल जो किया था मॉडल के लिए किया था सिक्वेंशियल, ये इट वाज आर्किटेक्चर फॉर द आर्किटेक्चर। तो केरास के मॉडल वाले पार्ट से इट इज, यू आर मॉडलिंग द आर्किटेक्चर, ये उस स्टेज का है। तो केरास के मॉडल्स वाले पार्ट से आपने सिक्वेंशियल इंप्रूव किया था, अब इस सिक्वेंशियल को आप यूज कर रहे हैं टू डिफाइन द आर्किटेक्चर। सो ये केरास का एक पहला पार्ट जो यूज हो रहा है। तो आपने सिक्वेंशियल वाले उसको अपना इंस्टेंस बनाया एज ए मॉडल
क्योंकि आपका आर्किटेक्चर मॉडल बनाएगा तो आपने नाम, या आपका नाम है, वहाँ से आपने लिया इस क्लास को और अपना इंस्टेंस बना लिया मॉडल। अब इस इंस्टेंस में तरीका, सीक्वेंशियल का तरीका ये है, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सीक्वेंशियल वे ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चरल मॉडल ये है कि आप हर पेयर ऑफ लेयर्स को बताएं कि मेरा इससे कन्वर्शन ये होगी, फिर इन सीक्वेंस नेक्स्ट इससे इसकी कन्वर्शन, फिर इन सीक्वेंस नेक्स्ट इससे इसकी कन्वर्शन। तो ये क्योंकि कन्वर्शंस ऑफ लेवल्स आप जो डिस्क्राइब करते हैं वो एक एक प्रीवियस से लिंक करके सीक्वेंशियली बताते हैं, प्रोबेबली दैट्स हाउ दे हैव नेम्ड इट सीक्वेंशियल। तो आपने देखिए मॉडल में पहली लेयर ऐड की, डॉट ऐड, क्या किया, इनपुट की शेप आपकी थी, ये आपके नेम पैरामीटर्स हैं जो आप दे रहे हो। इनपुट की शेप आपकी गिवन थी 784। इसको आपने पहले स्टेज पर, नेक्स्ट लेयर आपने डिसाइड की थी आर्किटेक्चर में, आप चाहते हैं कि वो हो 256 की, तो आपने कहा 784 इधर और 256। अच्छा, अब आपने इसके अंदर वो एक्टिवेशन फंक्शन, हम हमेशा हर दफ़ा जब एक लेयर नई ऐड करते हैं, हर लेयर पर अपनी एक एक्टिवेशन फंक्शन होती है। हमने एक्टिवेशन फंक्शंस को भी, वेरियस ऑप्शंस को एक दफ़ा तमाम डिटेल से देख लिया है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस हम इस्तेमाल करते रहे हैं, अभी भी इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर इस किस्म के प्रॉब्लम्स में जनरली, जिस तरह हम पीछे देख रहे थे कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये सिग्मॉइड वाला एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और नॉन लीनियर को हैंडल करता है, तो ये अक्सर में ये नज़र आएगा। और आउटपुट वाले स्टेज पर ये सॉफ्ट मैक्स, जब मल्टीपल क्लासेस हैं तो सॉफ्ट मैक्स का नज़र आएगा। बहरहाल इसके दूसरे चॉइसेस भी इस्तेमाल होते हैं, तो हमने यहाँ पर ये चूज किया है। तो अब आप देखिए, पहले डॉट ऐड में आपने कहा 784 टू 256। अब ये डेंस का मेथड वहां से कॉल किया जो आपके पास हमने इंपोर्ट किया था। डेंस का मतलब है कंप्लीटली कनेक्टेड ऑप्शन। डेंस में आप कंप्लीटली कनेक्टेड का ऑप्शन इस्तेमाल करें, तो ये हम कह रहे हैं 78 से 256 कंप्लीटली कनेक्टेड। फिर यहाँ दूसरे में हमें डेंस करके खाली ये एक दिया, सबसे पहले वाले में हमें इनपुट शेप भी देनी पड़ती, उसके आगे हम इधर से कनेक्ट करते हैं कि अब ये 256 तक आ गया है, तो नेक्स्ट में हमने खाली 128 दिया। फिर हमने कहा अब ये 128 तक आ गया है, तो नेक्स्ट में 10 दिया। तो बाय गिविंग दिस हमने ये आर्किटेक्चर डिस्क्राइब कर दी सीक्वेंशियल, और हमने उसमें कनेक्टिविटी भी बिटवीन ईच पेयर ऑफ लेयर्स भी बता दी। डॉट ऐड किया, कनेक्टिविटी दी, पहले वाले में दोनों लेयर्स का बताया, आगे फिर इससे कनेक्ट करके ये लेयर, इससे कनेक्ट करके लेयर, इस तरह हमने ये, तो ये हमने आर्किटेक्चर डिफाइन की केरास के जरिए से यूजिंग द सीक्वेंशियल क्लास। सर एक क्वेश्चन है ये 38 पे, जी जी, पिछले कोड पीछे वाले कोड पे लिखा नहीं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट शेप इज इक्वल टू 784 के आगे कोमा दिया हुआ है, जी जी, तो ये कोमा इसका मतलब बता देंगे साथ, हाँ ओके, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ ओके जी ओके। ये जैसे हमारे ट्यूपल जब हमने सीखा था इस क्लास में, जी, शुरू में जब हमने पाइथन में। पाइथन में हमने सीखे, तो ट्यूपल के जिस तरह लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स के चॉइसेस हैं और इस्तेमाल जी होती है, तो ये जी ट्यूपल में दिया हुआ है। तो अगर इनपुट शेप सिंगल, इस केस में हमारा सिंगल वेक्टर था, पहली हाँ डायमेंशन जी सिंगल वेक्टर, क्योंकि हमने जी फ्लैटन किए हुए थे तो हम 78 हो। तो ये कॉमा का मतलब है इट्स ओनली दिस वन डायमेंशनल थिंग जो हम यूज कर रहे हैं। आगे फिर अगर जी आप और अगर कोई 2 डायमेंशनल इनपुट शेप होती तो आप जी 74 डॉट दिस जितने भी हैं ट्यूपल के अंदर होते हैं वो मेंशन करते। तो इट जी इज शोइंग इट इज वन डायमेंशनल, इट्स द फर्स्ट डायमेंशन जो हमारे इस केस में है, तो इस दैट कॉमा।
for that. Okay. सही जी सर. Okay. अच्छा. Any other question? Any आप और कोई नो question? सर. Okay. नो सर, नो अच्छा, सर, अब हम बाकी आगे क्लियर है. कह रहे हैं कि अब हमें वही कि हमने ये काम कर लिया है, तो अब हम ट्रेन करना चाहते हैं मॉडल को, लेकिन हमें अब चूज करना है कि हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए या लॉस को हैंडल करने के लिए अपना ऑप्टिमाइज़र क्या इस्तेमाल करेंगे. तो हमने ये तय किया, ये जो हमारे पास केरास में हमने इंपोर्ट की थी क्लास SGD, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे. ये ग्रेडियंट डेसेंट का स्टोकेस्टिक ऑप्शन जो हमने, यू रिमेंबर हमने सीखा था जब बेसिक्स सीख रहे थे, वो इसीलिए सीख रहे थे कि जब ये रेडिली किसी में इस्तेमाल हो तो यू नो कि ये क्या इस्तेमाल हो रहा है. तो ये SGD वाली क्लास से हम ऑप्टिमाइज़र को अपने लेंगे. तो ये अब ट्रेनिंग नेटवर्क करना है. पहले ऑप्टिमाइज़र का हमने एक साइज स्टेप का दिया. SGD कैन टेक ए पैरामीटर कि वो आपको वो जो हमने बताया था स्टेप, जब आप मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन को स्टेप साइज, तो ये आपने 0.01 का स्टेप साइज दे के इस SGD को जो आपकी क्लास के तौर पे था इंस्टेंस बनाया. स्मॉल SGD इज योर इंस्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइज़र विद दिस स्टेप साइज. इसको लेकर अब आपने जो मॉडल बनाया था पीछे, ये मॉडल, ये मॉडल सिक्वेंशियल जिसमें ये सब चीज़ें आप ऐड करते गए और मॉडल आपने बना लिया आर्किटेक्चर का. अब उस मॉडल में आप उसको कंपाइल कर रहे हैं, मॉडल डॉट कंपाइल, नॉट दैट कंपाइलेशन. आप ये मॉडल की पुटिंग टुगेदर वाली कंपाइल, ये मेथड आप इस्तेमाल करें. मॉडल के साथ कंपाइल का मेथड इस्तेमाल किया और उसमें ये पैरामीटर्स आपने दिए और ये तमाम चॉइसेस ऑफ योर डिजाइन यहाँ लिस्ट कर दिए एंड दैट्स इट, योर मॉडल हैज बीन मेड बाय केरास. आपने क्या कहा? आपने कहा कि लॉस में मैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, हमने जब वो मेथड सीखे थे उसमें एक क्रॉस एंट्रोपी का था. जब हम लॉस फंक्शंस को हमने स्टडी किया, हमने 2-3 लॉस फंक्शंस स्टडी किए, उनमें से एक जो हमने कहा था ज़्यादा पॉपुलर फॉर मल्टी क्लास कैटेगराइजेशन होता है, तो हमने कैटेगराइजेशन की क्रॉस एंट्रोपी बेस्ड. ऑप्टिमाइजर हमने अभी बता दिया, ये SGD विद 0.01 पैरामीटर स्मॉल SGD. मैट्रिक्स में जो एक्यूरेसी की मैट्रिक्स हमारी है वो इस्तेमाल होनी है. तो ये हमने मॉडल को के पैरामीटर्स बता दिए, लॉस का, ऑप्टिमाइजर का और मैट्रिक्स का, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का. अब हम वी आर रेडी कि हम इसको ट्रेन करें. ट्रेन के लिए सेम हमने फिट का मेथड इस्तेमाल किया. तो मॉडल पे जो अब बनाया गया है केरास की मदद से, इस मॉडल पे फिट का फंक्शन इस्तेमाल हम कर रहे हैं और ये हमारे वो जो आउटपुट बनती है ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, ये ट्रेन एक्स और वाई के हिस्से हैं. इस केस में फिर टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई हैं. तो इस केस में हम इसको नेम ऑफ वैलिडेशन डाटा के नेम से टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई इसमें दे रहे हैं. नंबर ऑफ कितनी ईपोस के बाद आपकी ईपोस की तादाद क्या है और हमारा बैच साइज. अब हमने एक और एडिशनल थिंग अब आ गई है कि हर बैच का साइज क्या होगा, उन बैचेस के साथ फिर ईपोस कितने होंगे, और ये बैच साइज स्मॉल और लार्ज हो सकते हैं. हियर इट इज नॉट टू बिग, तो बैच साइज 128. तो इसमें अब दो बातें हैं, एक तो ये बैच साइज ऐड हो गया, ठीक. एक ये है कि यहाँ टर्म ये नेम वेरिएबल बहुत फॉर्मल केस में इसको हम वैलिडेशन डेटा के तौर पे हमने यहाँ टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई को इस्तेमाल कर लिया. एक्चुअली जब हम बाद में और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव मॉडल पे जाएंगे, जो मैंने शुरू में बताया था कि अमूमन आप डेटा को 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं जब आप ये काम कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. ये जो स्प्लिट होता है, ये जब आप ज़्यादा कंप्रिहेंसिवली मामलात को करना शुरू करेंगे
तो स्प्लिट आपका 3 हिस्सों में होता है एक्चुअली, जो हमने शुरू में बात की। ये एक ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ट्रेनिंग। उसके बाद एक पार्ट होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में हम वो जो हाइपर पैरामीटर की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो एक पोर्शन वैलिडेशन के लिए हम रखते हैं। यहाँ हाइपर पैरामीटर की एडजस्टमेंट हो रही है वैलिडेशन में। अच्छा, फिर एक होता है कि टेस्टिंग, यानी आपने ट्रेन किया, फिर हाइपर पैरामीटर जो स्टेप साइज और ये उनको एडजस्ट किया, फिर आप टेस्ट आपने किया, ओके मेरी नाउ मेरा सिस्टम इज रेडी, नाउ लेट मी टेस्ट। ये हमारा जो सही फॉर्मल डिवीजन है वो ये है। लेकिन जब आप इन बिटवीन स्टेज पर करते हो तो एट टाइम्स ये हाइपर पैरामीटर एडजस्ट वाला एक अलग सेक्शन एज ए वैलिडेशन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिंस क्वाइट प्रीवियस एग्जांपल में हमने उस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया। हाइपर पैरामीटर के एडजस्टमेंट का हमने हर दफ़ा जिक्र करते रहे, मगर इस पोर्शन को हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये फॉर्मली ये 3 हिस्से हैं। तो जहीं अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ये एक एडिशनल हिस्सा होता है और होना चाहिए, और कई जगह इस्तेमाल होगा बाद में। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि ट्रेन करना है, टेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर यही कह दिया कि जो इसने वैलिडेशन का चॉइस दिया था, वैलिडेशन डाटा, हमने कहा ओके इसमें हमारा टेस्ट सेट, हमने 2 हिस्सों में ब्रेक किया, तो हमें हमारा टेस्ट सेट और टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने ये कहा है। बट देर इज ऑलवेज फ्यूचर में जब आप हाइपर पैरामीट्रिक एडजस्ट में जाए तो यू कैन यूज दैट। ओके, अब हम ये आ गए, हमने जो देखा था अभी एवेल्युएटिंग ऑफ द नेटवर्क, अभी पीछे के स्टेप में किया। ये स्टेप हमारा अगेन यहाँ भी है। ओके, तो ये प्रिंट कर दिया एवेल्युएटिंग पैरा नेटवर्क, और हमने मॉडल जो बनाया था, ये उस मॉडल के डॉट प्रिडिक्ट का मेथड प्रिडिक्ट करने के लिए अब हमने टेस्ट एक्स लिया प्रिडिक्शन करने के लिए, और यहाँ बैच साइज दिया इसमें कि बैच साइज हमारा 128 है, और हम प्रिडिक्शन को कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स इस मेथड को अप्लाई करने से प्रिडिक्शंस में हमने डाल दिए। अब अगर हमारे पास रिजल्ट प्रिडिक्शंस में आए जिस तरह पहले हमने किया था, कि आगे हम जब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट करेंगे तो हमारे जो टेस्ट वाई में आंसर मैक्सिमम वाला होगा, और ये प्रिडिक्शंस वाले में ये एक्चुअल आंसर अभी मैंने ये डिस्क्राइब किया था, और ये हमारा यहाँ पर टेस्ट डाटा ने प्रिडिक्ट किया, और उस केस में भी हमारे पास एक्चुअल आंसर होता है। टेस्ट डाटा वाले केस में नॉट ओनली ट्रेनिंग, टेस्ट डाटा में भी हमें करेक्ट आंसर पता होता है, ताकि हम परफॉर्मेंस के लिए, पहले जो टेस्ट डाटा था जब आप ट्रेन कर रहे थे तो वो लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। टेस्ट एक्स, वो जो ट्रेन एक्स और टेस्ट एक्स, ये थोड़ा सा यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि ये कंफ्यूजन एट टाइम्स लोगों को होता है, कि हम ये कह रहे हैं, एक चीज़ हम कहते हैं कि ये ट्रेन एक्स है, ट्रेन एक्स जो हम बार बार हर जगह देख रहे हैं, ट्रेन एक्स, और उसी में ट्रेन वाई भी है, ट्रेन वाई भी है। ठीक, हम कह रहे हैं जब हम टेस्ट कर रहे हैं तब भी टेस्ट एक्स है, टेस्ट करते हुए भी एक्स है, और इन टेस्ट का वाई भी है, टेस्ट वाई, टेस्ट ट्रेन एक्स ट्रेन वाई यहाँ, और टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई। अच्छा, और इसी को हम अभी स्प्लिट कर रहे हैं अपने, हमारा ये पूरा डाटा होता है, उस पूरा एक यहाँ से यहाँ तक पूरा डाटा जो हमने लिया है, और उसका 75% लेट से ये हमने इधर ले गए, जिसमें से इसके अंदर दोनों हिस्से होते हैं, डाटा भी है और आंसर्स भी हैं। ये वाई है, लेट से ये हमारा ये एक्स है ये पूरा, और उसका हर एक के आगे एक आंसर जो भी वाई है ये। इन दोनों को इकट्ठे को हमने स्प्लिट कर दिया 75 और 25 में। जो 75 है वो ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई है, ये करेक्ट आंसर्स, सैंपल्स। टेस्ट एक्स में भी सैंपल्स एंड करेक्ट आंसर्स। यहाँ करेक्ट आंसर्स किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जब
W यूज करते हुए कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हो, तो एरर और लॉस के जरिए से ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट लाना अपने W's के लिए, तो वहां पर ये ट्रेन Y उस लिए इस्तेमाल होगा, लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि आपका मॉडल में W सही सेट हो जाए और आपका मॉडल सही बन जाए। अब यहाँ पर आपने ट्रेन कर लिया, आपने W सेट कर लिया, आपका सिस्टम रेडी है। अब आपने इस डेटा पर उस सिस्टम को जो ट्रेन करके हो गया उसको रन कर रहे हैं आप टेस्ट एक्स पे। अब आप ओके, अब आप लॉस को कम करने के लिए ये टेस्ट वाई अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप किस लिए करेंगे टेस्ट वाई इस्तेमाल? आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जब आपने टेस्ट एक्स को रन किया और आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू, इस केस में वैल्यू को कहते हैं प्रिडिक्टेड, इसने टेस्ट एक्स ने कैलकुलेट करके जो वैल्यू दी उसे प्रिडिक्टेड, इसने प्रिडिक्टेड वाई दिया और आपने टेस्ट वाई और इसको देखकर ये देखा कि आपका आंसर सही था या गलत था, और इसके जरिए से यहाँ आप परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस जिसमें एक पैरामीटर जो हम देखते हैं परफॉर्मेंस में, एक्यूरेसी, तो आपके दोनों जगह टेस्ट ट्रेंड वाई और टेस्ट वाई में करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, एक्चुअल आंसर्स, मगर उनका रोल ट्रेन एक्स में अलग है, ट्रेनिंग डेटा पे अलग है, और टेस्ट डेटा पे उनका रोल अलग है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स पीपल मिक्स इट अप। तो अब हमने यहाँ प्रिंट किया ये मैक्सिमम इसका टेस्ट और ये दोनों का आ गया, और आपने इधर से टारगेट हमने कहा ये मैक्सिमम ऑफ टेस्ट वाई, मैक्सिमम ऑफ प्रेडिक्शंस वाला, और फिर हमने टारगेट के नेम्स स्ट्रिंग ऑफ एक्स फॉर एक्स इन दी, ये जो हमारा हमने बनाया था लेबलाइजर के जरिए जो क्लासेस, उसके अंदर ये एक्स को लेते हुए वो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे शो किया है टारगेट नेम्स के लिए। ओके, ये ऑलराइट, ये अब हमारा लास्ट वो है कि अब हमने सारा कुछ कर लिया है, अब हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमेशा। तो देखिए यहाँ हमने अपना पहले से लर्न किया था मैटप्लॉट लिप, और उसको इंपोर्ट भी अभी कर लिया है। अब हम उसको यूज़ करके और ये हम बना रहे हैं ग्राफ, ठीक। तो वो उसके अंदर इफ़ यू रिकॉल हमने ये स्टाइल का कहा था कि आप ये ग्राफ प्लॉट जो आप बनाते हैं एक्स वाई प्लॉट, ग्राफ डॉट वाला वो जी प्लॉट स्टाइल है। फिगर वो जो एक्स वाई और साइज ये थे, तो हमने ये फिगर का एक पार्ट डिफाइन कर लिया, स्पेस, एक स्पेस फिगर के, उस पे ये एक्स वाई प्लॉट बनाना है, ये बता दिया। अब इस प्लॉट के लिए ये हमारा निकनेम था प्लॉट, वहाँ पर हमने जो इंपोर्ट किया तो उसको एज प्लॉट किया था, ठीक। तो इसको अब हम ये इसमें हमने ये चीज़ें ली, एक तो एक्सिस की, एक्स एक्सिस का रेंज, अरे रेंज 0 to 100 सब में लिए, एच वहाँ पर हमने बनाया था उसकी हिस्ट्री वाला एज ए लॉस, एच डॉट हिस्ट्री लॉस, फिर लेबल ट्रेन लॉस, यहाँ वैल्यू लॉस, ट्रेनिंग का लॉस, वैल्यू लॉस, ये वैल्यू लॉस इज वैलिडेशन, वहाँ पे ये टर्म वैलिडेशन के लिए है, विच एक्चुअली हमारे केस में टेस्ट लॉस है। तो वैलिडेशन में लॉस, और ये वैलिडेशन ये लेबल वाइज वैलिडेशन लॉस लेबल, और ये हिस्ट्री, और ये एक्यूरेट ट्रेनिंग की एक्यूरेट थिंग, वैलिडेशन का एक्यूरेट जो दिया हुआ होता है, जो वाई में करेक्ट आंसर क्या है और कैलकुलेटेड आंसर क्या है। फिर ये टाइटल हमने ये सीखा था
ट्रेनिंग लॉस एंड एक्यूरेसी, ये टाइटल हमारी इस फिगर का होगा। एक्स के लेवल पे हम ईपोस लिखेंगे, वाई के लेवल पे हम लॉस ऑब्लिक एक्यूरेसी लिखेंगे। लेजेंड में ये तमाम कलर कोड पे बताए जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ये खुद ही वंस यू यूज द लेजेंड और आपने तमाम जो वेरियस वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं वो उनको डिफरेंट कलर्स से लिस्ट कर देता है कॉर्नर में और उन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करता है। बड़ी हैंडी थिंग। और ये सेव फिगर, ये आर्गूमेंट्स आपने दिए, ये आउटपुट का जो हमने बताया था शुरू में, ये आपने इस्तेमाल किया कि फिगर ये वाली यहाँ सेव कर दें, और ये इस्तेमाल किया कमांड लाइन का जो पार्सर का ऑप्शन था। ये हमारे सारे रिजल्ट हैं इस पूरे इस एक्टिविटी के जो भी हमने ये की है। ये हम देख सकते हैं कि जब आपने इसको रन किया तो ये आपके वो पहले हमने कहा था लोडिंग एमनिस्ट फुल डाटा सेट, ये प्रिंट हो गया। फिर हमने एक जगह प्रिंट किया था ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क, वो प्रिंट हो गया। फिर हमने एक जगह प्रिंट किया था ट्रेन ऑन 52,500 सैंपल्स एंड वैलिडेट ऑन 17,500 सैंपल, ये कर दिया। ईपो हमारी 100 हैं, उनमें से 1 ऑफ 100 हमने 100 ईपोज रन की हैं, तो आउटपुट पे हमने शो किया है कि ये हमारी पहली ईपो का रिजल्ट है, और वो ये है लॉस दिस, ये लॉस accumulate accuracy, loss, accuracy, validation loss, validation accuracy, ठीक। यानी ये आपका ट्रेनिंग के दौरान हो रहा है, और ये वैलिडेशन के दौरान जिसको हम टेस्ट डाटा कहते हैं कि लॉस क्या आ रहा है और एक्यूरेसी। और इसी तरह फिर सेकंड ईपो में ये सारी चीज़ें, थर्ड 100th ईपो में ये चीज़ें प्रिंट हो गई। फिर हमने जब ये ट्रेनिंग वाले पार्ट को कर लिया तो हमने एवेल्युएशन ऑफ द नेटवर्क को के रिजल्ट्स को प्रिंट किया, और वो ये हैं। इसमें एज यूजुअल हमारे ये 0 का 1 का 2 3 4 के ये सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ हम देख लें कि ये एक्यूरेसी वाला पार्ट ये है 0 के लिए, 1 के लिए 2, इसका ये एवरेज है 92%। ये हमारा ये ग्राफ में यही वाली बातें सब जो हैं इसकी जो उधर कहीं थी वो ग्राफ की शक्ल में है, ठीक है। ये 92% एक्यूरेसी वाला। तो देखिए लॉस और एक्यूरेसी इस एक्सिस पे है जो अभी हमने अपना लिखा है मैट प्लॉट लैब से उसने ड्रॉ किया। ये टाइटल था ट्रेनिंग लॉस एंड एक्यूरेसी। ये लेजेंड में उसने, क्योंकि हमने 4 चीज़ें उसे कही थी करने को, तो उसने इन चारों चीज़ों पे लेजेंड में डिफरेंट कलर असाइन किया और उसी से प्लॉट बनाए। तो ये लेजेंड बताते ट्रेनिंग का लॉस, वैलिडेशन का लॉस, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, वैलिडेशन की एक्यूरेसी। और ये 4 ग्राफ क्या शो कर रहे हैं कि ये दो पहले ये रेड और ब्लू ट्रेनिंग के लॉस और वैलिडेशन के लॉस को शो कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये लॉस दोनों का ये कम हो रहा है ट्रेनिंग और अच्छा, लेकिन ट्रेनिंग की एक्यूरेसी और वैलिडेशन की एक्यूरेसी यहाँ पर ये हमारी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी और वैलिडेशन की एक्यूरेसी, ये उसके प्लॉट्स। तो जो हमने यहाँ रिजल्ट लिए थे ये उसके हिसाब से है। और हम इसमें देख रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट, नो ओवरफिटिंग अकरिंग। ओवरफिटिंग क्या होती है कि अगर आपका ट्रेनिंग का रिजल्ट तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन आपका वैलिडेशन वाला या टेस्टिंग वाला रिजल्ट ख़राब हो रहा है, तो हम फिर रेगुलराइजेशन के ज़रिए ये चाहते हैं कि यार आपका बेशक ट्रेनिंग वाला लेस ओवरफिट हो जाए, लेकिन हमें वैलिडेशन या टेस्टिंग का रिजल्ट सही रहना चाहिए। इस केस में वो दोनों मैच कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। और ये 92% एक्यूरेसी के साथ ये वर्क कर रहा है। हम देखेंगे कि जिन केसेस में वो मसला आता है ओवर फिटिंग का, वो आगे आएगा और फिर उसके हल करने के भी तरीके हैं। तो ये इसी बातों को कहा हुआ है कि हम आइंदा फिर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से देखेंगे कि दैट विल इंक्रीज अवर एक्यूरेसी ट्रेमेंडसली। अभी हमें 92% है, ये कोई 98-99%
तक हम लेके जा सकते हैं ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, विच आर द नेक्स्ट कमिंग थिंग जो हम लर्न करेंगे इमेजेस पे काम करने के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इसमें एक बात हम जो देखेंगे जब हम जाएंगे उस पर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे, कि हमने अभी ऑल टू ऑल कनेक्टिविटी दी है, डेंस कनेक्शन। ये दिस नॉट नेसेसरी, देखने में तो हमेशा ऑल टू ऑल कनेक्टिविटी कहीं पे दें तो बहुत कॉस्ट करता है वो उस, बट हम कहते हैं परफॉर्मेंस के लिए हमें वो करना है तो हम करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम क्लेवरली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करें, जिसमें कन्वोल्यूशन के मायने वही हैं जो आपको हम सिखाते रहे हैं थ्रू आउट इंक्लूडिंग दिस कोर्स एंड तो वो ना सिर्फ आपके ऑल टू ऑल कनेक्टिविटी में बिग सेविंग कर देगा बल्कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहा है। तो दैट इज हाउ दिस कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज अ ब्रेक थ्रू, कि आपकी उसने कनेक्टिविटी कॉस्ट को कम किया और परफॉर्मेंस को बेहतर किया। आमतौर पे मोर कनेक्टिविटी गिव्स यू मोर परफॉर्मेंस, जो हम नेटवर्क्स में देख रहे होते हैं। ये उसका मामला है ज़बरदस्त, जिसको जब हम यही मामला CNN से करेंगे तो आप देखोगे कि दैट एनहांसमेंट एंड दैट सेविंग अकर्स। ओके, तो ओके, दैट्स ऑल फॉर आवर दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी जो होगी इसमें केरास को यूज करके मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क की C410 होगा। इसमें 10 ऑब्जेक्ट्स के सेट, डेटा सेट है, 10 क्लासेस का डेटा सेट है, एरोप्लेन, एनिमल एंड ऑल दैट वैरायटी के साथ, और उस पर हम इसको ट्राई करेंगे कि हम केरास के जरिए कैसे। दिस इज अनदर वेल नोन डेटा सेट फॉर people who get into these deep learning thing, and we will use Keras for doing that. Okay, all right, any questions? If you have, you can ask, or else we can say Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. No question, sir. Okay, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Welcome.